اس نے کیول اتنا کہا تھا کہ اپنے مہمان کا پوری طرح دھیان رکھنا، سیوا میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ اس سے کہنا کہ پنکھ سمیٹے رکھے۔ کوئی نام نہیں بتایا تھا۔ سروجنی کسی ناگن کی طرح بل کھانے لگی۔ نہیں، مرلی نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔ میرے رانگ نمبر کہنے کے بعد اس نے کہکہ لگا کر لائن منتقل کر دی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ سروجنی نے خود کلامی کا انداز اختیار کیا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹیں اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ گرو، میرے ذہن میں پرتاپ کا تصور ابھرا۔ مرلی نے جو جملے ادا کیے تھے اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ گرو میری طرف سے بے خبر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، سروجنی نے مٹھیاں بھینچ کر بڑے زہریلے انداز میں کہا۔ اس کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ تمہارے ذہن میں کس کا نام ابھر رہا ہے؟ مرلی نے چونک کر پوچھا۔ لنکا ڈھانے والا کوئی گھر کا بھیدی ہی ہو سکتا ہے۔ سروجنی کے تیور خطرناک ہونے لگے۔ نہیں سروجنی نہیں، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بے قابو ہونے سے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ تیرے من میں جس کا نام ابھر رہا ہے وہ نردوش ہے۔ میں سمجھ گیا کہ فون کس نے کیا تھا۔ وہ کون ہے مہاراج؟ مرلی اور سروجنی نے یک زبان ہو کر سوال کیا۔ میں اس کا شبھ نام نہیں لے سکتا، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ بڑی مہان شکتیوں کا مالک ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ آنکھ بند کر کے دھرتی کے کسی کونے میں بھی پہنچ سکتا ہے، ساگر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا سکتا ہے۔ وہ میرا دوست بھی ہے۔ نہ ہوتا تو میرا اتنا دیہان کبھی نہ رکھتا۔ میں نے وہ وضاحت سادھنا کو سروجنا کے ممکنہ عتاب سے بچانے کی خاطر ضروری سمجھی۔ گھر کے بھیدی کے اشارے پر میں سمجھ گیا کہ سادھنا کو شبہ کی نظروں سے شناخت کیا جا رہا ہے۔ میری بات سن کر سروجنی کا غصہ ختم ہو گیا۔ مرلی نے بھی مزید کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ کچھ دیر بعد بیٹھ کر وہ چلے گئے تو میں نے روشنیاں بجھا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں تھکا تھکا ہوا تھا، اس لیے جلدی سو گیا۔ رات کے دوپہر گزر جانے کے بعد میں واش روم جانے کی ضرورت کے پیش نظر بیدار ہوا تو میرے کانوں میں کسی کے ہلکے ہلکے خراٹے لینے کی آواز گونجی۔ وہ میرے لیے غیر مانوس نہیں تھی۔ میں نے عالم تصور میں اپنے سر پر نظر ڈالی۔ میرا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ انکا رانی میرے سر پر اپنا نازک بدن سمیٹے، ہاتھوں کے تکیے پر سر رکھے بائیں کروٹ لیٹی چھوٹے چھوٹے خراٹے نشر کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے تاثرات موجود تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کئی راتیں جاگنے کے بعد 2 گھڑی سونے کی فرصت ملی ہو۔ وہ کسی نوجوان بیوہ کی طرح لٹی لٹی اور سوگوار سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے پتلے پتلے نرم و نازک سے تراشیدہ ہونٹ جو ہمیشہ مسکراتے رہنے کے عادی تھے، اس وقت بڑے پھیکے پھیکے سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اسے پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ شاید میرا ناروا سلوک نے اس پر کوئی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ بڑی بڑی بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انکا رانی میرے دکھ درد کی ساتھی تھی، میری ہمراز تھی، میری محبوبہ دل نواز تھی۔ مجھے بڑی شدت سے اس کی واپسی کا انتظار تھا۔ وہ آ گئی تھی لیکن بے سدھ پڑی سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا، والہانہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ میری خاطر انکا کے شب و روز کتنی مصروفیت میں گزرے ہوں گے۔ میرے تحفظ کی خاطر وہ ادھر ادھر چکراتی پھری ہوگی۔ کبھی کسی پجاری کے سر پر، کبھی روی شنکر کا ذہن پلٹنے کی خاطر اسے زور لگانا پڑا ہوگا۔ کبھی ان فیصلوں کو تبدیل کرانے کی خاطر جدوجہد کرنی پڑی ہوگی جو میرے خلاف صادر ہوئے ہوں گے۔ وہ سروجنی کے سر سے بھی دور نہیں رہ سکتی تھی۔ میری خاطر اس نے سادھنا کے دل و دماغ کو بھی ضرور خریدا ہوگا۔ جو مکھی لڑتے وقت ایک ذرا سی غفلت بازی پلٹ دیتی ہے، انکا نے یقیناً کئی راتوں تک
अपनी पलकें नहीं झपकी होंगी। उसे प्रीतम लाल ने मेरे हवाले किया था। प्रीतम लाल ने मुझे खुदकुशी से रोककर कुलदीप के मिशन को पूरा करने का वादा किया था। उसने इनका रानी को भी मेरे मुस्तकबल के बारे में बहुत सारी बातें समझाई होंगी, मशवरे दिए होंगे, सारी ऊंच नीच से आगाह किया होगा। मैं इनका की मासूम और सोगवार चेहरे पर नजरें जमाए अपने ख्यालात में मुस्तगर्क था, जब उसने अचानक हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। शायद नींद में भी वो मेरे ख्याल से गाफिल नहीं थी। किसी खदशे के मामूली से एहसास ने उसकी नींद उचाट कर दी। उसने थकन दूर करने की खातिर बदन अकड़ा कर तवील अंगड़ाई ली, फिर आंखें मलती हुई उठ बैठी। तुम आ गई। मैंने उसे प्यार भरे नजरों से मुखातब किया। मैं कई दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा था। जवाब में इनका रानी के होंठों पर एक उदास तबस्सुम मुचल उठा। वो अभी तक मुझसे शाकी थी, उसकी खफगी बजा थी। बहुत ज्यादा नाराज हो? मैं बड़े लाड से बोला। माफी की कोई गुंजाइश है जमील? वो सर्द आह भरकर बोली। कभी कभी तुम्हारी बातें मेरे वजूद में नश्तर बनकर उतर जाती हैं, मुझे एहसास है, लेकिन गुस्से और दीवानगी में जुबान पर काबू नहीं रहता। मैंने एतराफ कर लिया। दिल से कह रहे हो? उसने मेरी आंखों में झांका। तुम्हारी आंखों में अभी नींद का खुमार मचल रहा है। मैंने इसरार किया। कुछ देर और आराम कर लो, इतनी मोहब्बत का इजहार मत करो जमील, तुम्हारी यही बातें मुझे तड़पा देती हैं। इतने दिनों कहाँ रही? मैंने बड़े प्यार से पूछा। कहाँ हो सकती थी? उसने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारे दुश्मनों के रास्ते काटने में मसरूफ थी। गुरु प्रताप को जानती हो? तुम बड़े खुशकिस्मत हो जमील कि गुरु प्रताप तुम्हारी मदद पर आमादा हो गया। प्रीतम लाल महाराज के बहुत सारे एहसानात हैं उस पर, शायद वो इन्हीं एहसानों का बदला चुका रहा है। वरना क्या? मैंने इनका की खामोशी को महसूस करते हुए वजाहत चाही। बड़ा दोगला और कमीना खसलत आदमी है, उसका काटा पानी भी नहीं मांगता। इनका ने कसमसा कर कहा। वो दरमियान में ना आ जाता तो रविशंकर के आदमी तुम्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते। क्या तुम्हारी सारी कुव्वतें भी दुर्गा ने छीन ली हैं? नहीं, इनका ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। मैं बराह रास्त किसी देवी देवता के ताबे नहीं हूँ, लेकिन पुरस्कार कुव्वतों के दरमियान भी कुछ दर्जा बंदी होती है। एक दूसरे के मर्तबे का ख्याल मलहूज़े खातर रखा जाता है। मुझे भी दुर्गा देवी की आवाज़ का पास है। मैं बराह रास्त तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती, लेकिन इतनी बेबस भी नहीं हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान सीना तार कर दीवार ना बन सकूं। जवाब में मैंने उसके कच्चों के बराबर सीने पर नजर डाली तो शोखिए पहलू बदल कर बोली। तुम्हें इस वक्त भी बदमाशी की बातें सूझ रही हैं। तुम्हारा सबसे पुराना और सच्चा आशिक हूँ मेरी जान। इनका की शोखी को महसूस करके मैं भी तरंग में आ गया। बड़े जुल्म सहे हैं तुम्हारे, क्या मुझे इतना हक भी नहीं दोगी कि मैं तुम्हारे नशीले आज़ा से ही दिल बहला सकूं? हालात अभी साजगार नहीं हुए हैं जमील साहब, इनका संजीदगी से बोली। पिंडत नूल किशोर ने चंद्रा की तरफ फिर अपने हरकारे दौड़ा दिए हैं। कालिदास और ओम प्रकाश की मौत उनके लिए बहुत बड़ा हादसा है। मेरा ख्याल है कि अब चंद्रा भी पहाड़ियों से नीचे उतरने से इनकार नहीं करेगा। मैं उसकी तरफ से भी गाफिल नहीं हूँ। क्या दुर्गा को इस बात का इल्म नहीं होगा कि गुरु प्रताप ने मेरी मदद की है? मैंने चंद्रा का नाम सुनकर उठकर बैठ गया। देवी देवताओं की नजर से कोई बात उज्जवल नहीं होती। दुर्गा को मालूम है कि गुरु प्रताप ने तुम्हें उसके आताब से बचाने की गलती की है। इनका का लहजा मैंने खेज था। क्या मतलब? कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें कबल अज वक्त नहीं बता सकती, लेकिन एक बात तय है कि गुरु को इस नाफरमानी की सजा जरूर मिलेगी। तुमने कभी चंद्रा को देखा है? तुम्हारे दिल में फिर खुदबुद शुरू हो गई। इनका ने मेरी कैफियत भांप कर कहा। फिलहाल अपने दिलो दिमाग को ठंडा रखो। गुरु प्रताप ने 21 रोज वाली बात गलत नहीं कही थी। 2 हफ्ते और गुजर लेने दो, फिर दिल की सारी भड़ास निकाल लेना।
मेरा दिल एक ही माहौल में रहते रहते घुटने लगा है। मैंने अपने इज़्तिराब का इजहार किया। चंद्रा और पिंडत नूल कशूर खुले मैदान में अपने अपने घोड़े सरपट दौड़ा रहे हैं। मैं यहाँ एक अपार्टमेंट में बंद बैठा हूँ। तुम यहाँ भी अपने दिल बस्तगी का सामान तलाश कर सकते हो। इनका सर से फुदक कर मेरे कंधे पर आ गई। बड़ी लगावट से बोली, सरोजनी तुम्हारी दासी है, पुजारन है। मंदिर में छोटे मोटे पुजारी भी किसी सुंदर पुजारी को अपनी बाहों में दबोच कर प्यास बुझा लेते हैं। तुम तो सरोजनी के लिए देवता हो। एक बार भूले से इशारा करके देखो, वो तुम्हें खुश करने की खातिर तुम्हारी कदरों में बिछ जाएगी। तुम मेरा जहन भटाने की कोशिश कर रही हो। मैंने इनका का मफहूम समझ कर कहा तो उसने झुककर मेरे कानों में सरगोशी की। एक राज की बात बताऊं तुम्हें, सरोजनी साधना से जलती है। उसने साधना को तुम्हारे करीब फटकने से भी मना कर रखा है। कभी एक नजर भर कर साधना को देखो, वो जिंदगी की लचकती शाख पर एक बंद कली की मानद मचल रही है। अभी किसी भनूरे की प्यासी नजर उस तक नहीं पहुंची। तुम इशारा करो, मैं उसे पके फल की तरह तुम्हारी आगोश में डाल दूंगी। क्या पिंडत नूल कुशार बंबई नहीं आया? मैंने इनका की बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछा। चंद्रा का नाम दरमियान में आ जाने से मेरे तन बदन में एक आग सी भड़क उठी। कुलदीप के जख्म फिर से हरे होने लगे। मैंने सोचा था कि चंद्रा को वदियाचल की पहाड़ियों से नीचे उतरने की जहमत नहीं दूंगा। खुद सीना तान कर उसके सर पर पहुंचकर ललकारूंगा। एक बार तो उसकी निगाहें भी मुझे खिलाफे तवक्का देखकर फटी की फटी रह जाती। वो हरामजादा आखिरी सांस तक जमील अहमद खान को फरामोश न कर सकता। मरने के बाद मेरे तसव्वुर भी उसकी आत्मा को किसी करवट चैन न लेने देता। वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि जिसके खिलाफ सफ़े आरा होने की खातिर वो दुनिया के हंगामों से दूर बर्फानी गुफा में बैठा देवताओं से लाजवाल कुव्वतों की भीख मांग रहा है। वो सामने आकर उसे मंडल से बाहर निकलकर मुकाबले की दावत देगा। उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़ते। मुमकिन है कि उसकी हरकतें कलब बंद हो जाती। सकते के आलम में अपनी जगह हमेशा के लिए मंजमंद होकर रह जाता। मगर मेरी हसरत दिल की दिल में ही रह गई। लंदन से रवानगी के बाद मुझे हवाई सफर के दौरान अशोक से उलझा दिया गया। मुरली से छुटकारा पाकर मैं ताज पहुंचा तो कुलदीप की आत्मा पुजारन नंदनी का जिस्म अपनाकर कजरा का नाम इख्तियार करके मेरी तवज्जो पिंडत कालीदास की तरफ मबजूल करा दी। मैं काली उदास से बेखबर रहता तो वो अंधेरे में वार कर जाता। फिर इनका बड़े प्यार से बोली, मुझे अपनी ज़ात से अलग मत समझो जमील। इनका ने बड़े खलूस से कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि एक एक करके तुम्हारे रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाएं, लेकिन उसके लिए हमें एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल करना होगा। जल्दबाजी में गलत कदम उठाकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तुमने जहाज पर भी अब अशोक के सिलसिले में जज्बाती फैसला ना किया होता तो वो शक्ति मेरी नजरों से उज्जल ना रहती जिसने मेरी निगाहों के सामने धुंध की चादर तान दी थी। मैंने इनका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो अभी तक इस बात से ना वाकिफ थी कि जहाज पर गुरु की हैसियत से कौन सफर कर रहा था। जहाज के हवाले पर मुझे अमृता याद आ गई। उसने गुरु के साथ सफर करने का जिक्र किया था, लेकिन मैं गुरु प्रताप से अमृता के बारे में भी कुछ दरियाफत नहीं कर सका। पे दर पे पेश आने वाले वाकयात ने इतनी मोहलत ही कहाँ दी। एक बात कहूँ जमील, कहो। अब तुम भी अब अपनी इनका रानी से अपने दिल का भेद छुपाने लगे हो। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? मैंने वजाहत चाही। तुम इस वक्त क्या सोच रहे थे? मैं नहीं जान सकी। इनका के लहजे में शिकवा था। पहले मैं तुम्हारे अंदर झांक लेती थी, लेकिन अब तुमने भी दरमियान में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी हैं। मैं इनका की बात सुनकर चौंका। मेरे जहन में एक ख्याल बड़ी सूरत से उभरा। गुरु प्रताप नहीं चाहता था कि इनका हवाई सफर के दौरान अमृता और उसके हम सफर होने के राज से वाकिफ हो। उसकी अपनी कोई मसलहत होगी। शायद उसी ने दरमियान में कोई पर्दा हायल कर दिया हो। अब क्या सोच रहे हो जमील? मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैंने कुताए हुए लहजे में कहा।
एक जगह बैठे बैठे मेरा दम घुटने लगा है। कहाँ जाओगे? जहाँ भी किस्मत ले जाए। मैंने लंबी सांस भरी। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। मेरी मसरूफियात को समझने की कोशिश करो। मैं सरोजनी के सर से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। उसे गाफल करके मुझे बाहर की सुनगुन भी लेनी पड़ती है। तुम नहीं जानते, रविशंकर की कुछ कमजोरियां सरोजनी की मुट्ठी में हैं, इसीलिए उसने मुरली की बात मान ली, लेकिन वो उसकी ताक में है। तुमने अगर उसे मौका फराहम कर दिया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। इनका ने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरी बात गौर से सुनो जमील। गुरु प्रताप में यहाँ पहुंचाने के बाद अब दुर्गा के आताब से बचने की फिक्र में मसरूफ है। मैं यकीन से नहीं कह सकती। मेरा ख्याल है कि अगर 21 दिन पूरे होने से बेशतर तुम्हारे ऊपर दोबारा कोई आफत आई तो वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। तुम मेरे साथ रहोगी? मैंने पूछा। अपने दिल से जवाब मांगो, वो क्या कहता है। उसने बड़ी हसरत से मुझे देखा। इनका रानी, मैंने कुछ याद करते हुए मौजू बदल दिया। रंजनी याद है तुम्हें? शौक की बेवा। इस वक्त तुम्हें अचानक रंजनी कैसे याद आ गई? इनका ने मुझे गहरी नजरों से घूरा। तुमने मुझे बताया था कि शौक की उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। 2 माह बाद रंजनी के यहाँ वो खुशी आने वाली है जिसकी हसरत दिल में लिए अशोक दुनिया से मुंह मोड़ गया। किस्मत की बात है जमील। इनका उदास हो गई। तुम्हें यह सुनकर दुख होगा कि अशोक के बाद उसके रिश्तेदारों ने रंजनी को मनहूस समझकर उससे मुंह फेर लिया। आजकल वो अपनी बहन के साथ है। मैं अशोक की मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन रंजनी की हर मुमकिन मदद करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इनका ने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा कि तुमने साधना के बारे में क्या सोचा है? बड़ी सिफारिश कर रही हो साधना की। मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। कहीं उसके कंवारे बदन में छलकता हुआ खून तो तुम्हें पसंद नहीं आ गया? उसे देखकर दिल तो ललचाता है, लेकिन अभी उसके खेलने कूदने के दिन हैं। इनका शोखी से बोली, अभी तो गरीब ने कुछ भी नहीं देखा। तुम उसे क्या दिखाना चाहती हो? मेरे लहजे में शरारत उतर आई। हर बड़े कारोबार का इफ्तिताह किसी बड़े आदमी से कराया जाता है। मैं चाहती हूँ कि साधना को जिस कारोबार में झोंका जाने वाला है उसकी इब्तिदा तुम्हारे मुबारक हाथों से हो। मैं समझा नहीं। सरोजनी किसी अक्टूपस से भी ज्यादा खतरनाक और दूर अंदेश है। बड़ी घाघ औरत है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नवाब और राजमंत्री भी उसकी किसी बात को टालने से बेशतर अपना आगा पीछा जरूर देख लेते हैं। सरोजनी ने अपनी जड़ें दूर दूर तक फैला रखी हैं। कारोबार जितना बड़ा हो उसके लिए खाम माल की भी उतनी ही जरूरत होती है। इनका ने सरसराते लहजे में कहा। सरोजनी का खाम माल वो हसीन और नोखेज कलियां हैं जो सिर्फ कार आमद आदमियों की आगोश में ही चुटकती हैं। साधना को सरोजनी ने बिला वजह इतना संभाल कर नहीं रखा। एक राजमंत्री को जाल में फांसने की खातिर साधना को चारा बनाया जाएगा। जिसके लिए मंत्री के लिए जाल तैयार किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें सुनकर दुख होगा कि उसकी जवान बेटी की उम्र भी साधना के बराबर है। पूरे भारत में उसका हुक्म खरे सोने के सिक्के से भी ज्यादा चलता है। इनका मुझे साधना के बारे में उकसाती रही, राजमंत्री की बाबत तफसील बताती रही और मैं खामोशी से सुनता रहा। क्या बात है जमील, तुमने साधना के सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया? इनका ने मुझे सवालिया नजरों से घूरा। पहले तो तुम्हारी राल बड़ी जल्दी टपकने लगती थी, आज मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। वो एक बार काबू आ जाए तो साधना जैसी हजारों हसीनाएं मेरी बाहों में मचलना
अपने लिए किसी एजाज से कम ना समझेंगी। सरोजनी की बात कर रहे हो? इनका के लहजे में तअज्जुब था। नहीं, मैंने सर्द आह भरकर जवाब दिया। कुछ दिनों बेशतर मुझे वो रात गए पूना के रेस क्लब में मिली थी। बड़ी रस भरी थी, गुस्से में क़यामत लग रही थी। शोलाए बदन, गुंचा दहन, रश्को चमन, भूरे यमन। मैंने देखा तो देखता ही रह गया। फिर क्या हुआ? दाल गली या नहीं? इनका ने शोखी से पूछा। मेरे अंदर एक उबाल आया था। वो बाम मछली की तरह तड़प कर हाथ से निकल गई। तुम इतने सियाने तो कभी नहीं थे जितने बालग अब हो गए हो, इनका ने पहलू बदल कर जवाब दिया। पहले मुझसे अपने दिल की कोई बात नहीं छुपाते थे, अब तुमने कतराना सीख लिया। मैं समझ रही हूँ जमील साहब कि तुम साधना की बात क्यों टाल रहे हो। अच्छा, मैंने कदरे मोहतात होकर बेपरवाही का मजाहरा किया। अब तुमने भी कद निकालना शुरू कर दिया। प्रीतम लाल महाराज की कुछ बातों ने मजबूर कर दिया है। वो होंठ काटने लगी। वरना मैं अब भी वही इनका हूँ, तुम जिसके इशारे पर नाचा करते थे, याद है ना? इनका के लहजे में तंज था, समुंदर जैसी गहराई थी। मैं ये बात महसूस किए बगैर नहीं रह सका। फिर मैं किसी गहरी सोच में डूब गया कि गुरु प्रताप ने मुझे हाथ थाम कर रविशंकर और उसके आदमियों की नजरों से उजल कर दिया था। इनका का मशवरा था कि मुझे 21 रोज तक सरोजनी के अपार्टमेंट से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए। दुर्गा की आवाज का आताब मेरी कुव्वतों को मफलूज कर चुका था। मैंने मुतअद्दिद बार अर्तकाज और मुराकबे की मशक करने की कोशिश की और हर बार मुझे नाकामी का सामना हुआ। दुर्गा देवी की वजह से प्रीतम लाल की आत्मा भी मेरी मदद से कासर थी। इनका भी बराह रास्त मेरी मदद से गरेज करने की मजबूरी का अतहार कर चुकी थी। मेरे पास सिर्फ सैयद मजजूब की लाठी रह गई थी जिसे मैंने सीने से लगा रखा था। मैं इस लाठी के करिश्मों से भी नावाकिफ था। सैयद की लाठी का ख्याल आया तो मैंने लपक कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, उलट पलट कर देखने लगा। सैयद मजदूब से मेरी पहली मुलाकात गुलबर्ग में रुकनुद्दीन की हवेली में हुई थी। उसका एक सिलसिला हजरत ख्वाजा गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह जैसे जलीलुल कदर बुजुर्ग से मिलता था। हजरत गैसू दराज का मज़ार होने के सबब गुलबर्ग को एक खास अहमियत हासिल थी। लोग दूर दराज से जोक दर जोक उनके मज़ार पर हाजिरी देने आते थे, जहां फैज़ आम का सिलसिला जारी था। सैयद मजदूब के ख्याल में मैं गुम लाठी को उलट पुलट कर देख रहा था जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं ख्वाबगाह में तन्हा नहीं हूँ, कोई और भी है। मुझे सरोजनी का शुबा हुआ। वो अक्सर रातों में उठकर मेरी खैरियत दरियाफत करने आ जाती थी। मेरी ख्वाबगाह में दूर दरवाजे थे, एक बाहर लाउंज में खुलता था, दूसरा सरोजनी के ड्रेसिंग रूम में। लाउंज का दरवाज़ा सरोजनी खुद अपने हाथ से बंद करके दूसरे दरवाजे से जाती थी। ये उसका रोजमर्रा का मामूल था। मैंने नजरें घुमाकर अतराफ का जायजा लिया, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आया। ख्वाबगाह में नाइट बल्ब की मदम रोशनी मौजूद थी। मेरा ख्याल इनका रानी की तरफ गया, शायद वो कहीं आस पास मौजूद हो, मेरे सर पर आने से हचकचा रही हो। मेरे सर से उतरते वक्त उसकी आंखें बरस रही थी। मेरा दिल पसीजने लगा। इनका रानी, मैंने सरगोशी की, जो कुछ हुआ उसे फरामोश कर दो। जहाँ मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाए वहाँ छोटी मोटी गलतियाँ जन्म लेती रहती हैं। ये रंजिशें एक दूसरे की चाहत का सबूत होती हैं। तुम अगर कहीं करीब हो तो मेरे सर पर आ जाओ, मैं तुमसे खुलकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे ज्यादा देर के लिए तन्हा मत छोड़ो। तन्हाई का एहसास इंसान को डसने लगता है, वो भटक जाता है। मेरी बात गौर से सुन लो। मैं यहाँ खुद को नजरबंद महसूस कर रहा हूँ। अब निकल चलो यहाँ से। जो होना है उसे मैं या तुम कोई टाल नहीं सकता। तुमने कहा था कि गुरु प्रताप को भी उसके किए की सजा भुगतनी होगी। वो भी जरूर वाकिफ होगा कि दुर्गा उसे मेरी मदद करने के जुर्म की पादाश में माफ नहीं करेगी। फिर भी वो मेरी आग में कूद पड़ा। उसने दुर्गा का पुजारी होने के बावजूद
اس کی परवाह नहीं की। प्रीतम लाल की दोस्ती की खातिर खतरों के समुंदर में छलांग लगा दी। मैं क्यों चोरों की तरह छुपा बैठा रहूं? मेरी बात सुन रही हो, समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूं? दूसरी सिमत से कोई जवाब नहीं मिला। मैं तलबला कर उठ बैठा। किसको आवाजें दे रहा है? क्यों रेगिस्तानी ऊंट की तरह पानी के लिए बुलबुला रहा है? भौंकना बंद कर दे बदबख्त। कमरे में एक मानूस आवाज गूंजी। मैं पागल हो गया। मैंने जुनूनी अंदाज में पलट कर देखा। वो लाउंज में खुलने वाले दरवाजे से टेक लगाए बड़ी बेनियादी से पांव फैलाए बैठा मुझे घूर रहा था। वो वहम नहीं हो सकता था। मेरी नजरों ने सैयद मजलूब को पहचानने में धोखा नहीं खाया। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए और गिर्द आलूद थे। सर के बाल खुदरू झाड़ियों की तरह बिखरे बिखरे थे। उन्हें बरसों से कंघी नसीब नहीं हुई थी। उसके तलवों में मिट्टी की तहें जमी नजर आ रही थी। एड़ियों की दरारें भी बहुत वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थीं। जिस्म का लिबास भी खस्ता था, जिसमें लगे मुख्तलिफ रंगों से प्योंद अपना रंग फीका कर चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक जलाल मौजूद था। उसकी निगाहें उजले नादरू नायाब हीरों की मानद चमक रही थीं। बेज़ाहिर अपनी उजड़ी कफियत में भी वो बादशाह लग रहा था। एक अजीब सी पुरवकार बेनियादी से सरशार नजर आ रहा था। सैयद मजदूब को सामने देखकर मेरे दिल की धड़कनों में उबाल आने लगा। मेरी पलकों ने झपकना बंद कर दिया। बड़ी मुद्दतों के बाद उसकी दीद की लज्जतों से फैज़ याब हुआ। अंदेशा था कि कहीं मैं आंखें बंद करूं वो नजरों से उजल ना हो जाए। कितने में खरीदा ये आली शान का बुक? सैयद ने दीदे नचाकर ख्वाबगाह पर एक उचटती नजर डाली। बड़े ठाठ नजर आ रहे हैं। पीरो मुर्शद, मैंने हाथ जोड़ लिए। मेरी रहबरी करो, मैं उलझ गया हूँ। सर पर कंघी किया कर। गुटरगू की आवाज से पेट नहीं भरता। तुम मेरे मोहसन हो सैयद, मैंने बसूरते हुए कहा। मैं दुर्गा की कुव्वतों के शकंजे में जकड़ गया हूँ। तुमने हाथ थाम कर इस दलदल से ना निकाला होता तो मैं निकाह पढ़वा रहा है, सैयद दीदे नचाते हुए बोला। एजाबो कबूल के चक्कर में पड़ा तो घिन चक्कर बन जाएगा, नजर लग जाएगी। आज मुझे मायूस मत करना, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, तुम मेरा हाथ थाम लो। आंख मचोली खेलना बंद कर दे, ऊंधा हो जा। तुमने बड़े इशारे किनायों में बातें शुरू कर दी। मैंने गड़गड़ा कर कहा, मेरा दम घुट रहा है सैयद, मेरी उंगली पकड़कर किसी रास्ते पर लगा दो। आज तेरी बुलबुल नहीं दिखाई दी। सैयद ने मैनी खेत अंदाज में गर्दन को जुम्बश दी। वो भी अब बात बात पर मुझसे रूठने लगी है, मैंने शिकवा किया। सैयद ने मेरा जवाब सुनकर कहका लगाया। उसके कहके में तंज था, नफरत थी, हकारत थी। वो देर तक पेट पकड़े कहके लगाता रहा, फिर यकलिख्त खामोश होकर इस तरह इधर उधर देखने लगा जैसे कोई आहट सुन रहा हो। फिर होंठों पर उंगली रखकर बड़ी मध्यम आवाज में बोला, कोई सी हो रही होगी, जा गई तो लट्टू घूमने लगेगा। उसके कदमों में पड़ा रह, बाकी सब भूल जा। तुम्हें खुदा का वास्ता सैयद, आज मुझे मायूस मत करना, मैंने इनकसारी से कहा। नकब लगा, डुबकी मार दे, नाक दबी रखना। वो सर खुजाते हुए बोला, कोई जुगनू पकड़ ले, उसे आंखें लड़ाया कर। मैं इस कैद से रिहाई का ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने खुलकर बात करनी चाहिए। रोई को धुंक लग जाने दे, गांठें खुल जाएंगी। उसने बड़ी राजदारी से जवाब दिया, फिर दाढ़ी खुजलाने लगा। मैं तुम्हें बातें समझने से कासर हूँ, मुझसे खुलकर बात करो पीरो मुर्शिद। मैंने आजिज़ी का इजहार किया। लूटन कबूतर की तरह कलाबाजी खानी शुरू कर दे, लाठी चलाना सीख ले। सैयद, मैंने तेजी से कहा, प्रीतम लाल कहता था कि तुम्हारी लाठी में ताकत के हजारों खजाने पोशीदा हैं। मेरे लिए कुछ और नहीं कर सकते, तुम मुझे इस लाठी के तमाम राज से आगाह कर दो। मैंने मिन्नत की। फिर सिटा खेलना शुरू कर दिया। उसकी आंखें पिटपटाने लगी। जवारी शराबी कबाबी, मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी का चिराग गुल कर दूंगा। मैंने उलझ कर कहा, धुआं बनकर उड़ जाएगा। सैयद ने मुझे चुभती नजरों से घूरा। फिर क्या करूं? मैं जुज़बुज़ होने लगा। उल्टा खड़ा हो जा,
ठुमके लगाना बंद कर दे। सैयद तुम्हें हजार हजरत गैसवे दराज की कसम, मैंने तंग आकर कहा, मेरी रहनुमाई कर दो। जवाब में सैयद की आंखों में शोले रक्स करने लगे। हजरत गैसवे दराज का नाम सुनकर उसने मुझे तेज नजरों से घूरा, फिर नजरों से उजल हो गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा फैल गया। वो मुझे मायूस कर गया, लेकिन नहीं, उसने ढके छुपे जुमलों में मेरी रहनुमाई करने की कोशिश जरूर की होगी। मेरी बेहतरी मंजूर ना होती तो वो आने की जहमत गवारा क्यों करता। वो खुदा का बसगजींदा बंदा था, शायद उसे खुलकर कहने का इख्तियार नहीं था। मैं ही ना समझ सका जो उसके रमज़ो इशारे की तह तक गोता लगाने से कासर था। उसकी बातों का मफहूम मेरी समझ में नहीं आया। मैं बड़ी देर तक सैयद की बातों पर गौर करता रहा। मेरी वहशतें जुनून की सरहदों को छूने लगीं। मैंने सरोजनी के अपार्टमेंट से जाने की ठान ली। सरोजनी वाले दरवाजे पर दस्तक देना बेकार था, वो मेरे रास्ते की दीवार बन जाती। मैं कुछ सोचकर आगे बढ़ा। लॉन्ज वाले दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर आ गया। सैयद की लाठी मेरे साथ थी। मैं बाहर जाने वाले रास्ते की सिमत कदम उठाने लगा। मुझे मालूम था कि बाहर की खुली फिजा मेरे लिए किस कदर जहर आलूद थी। पुलिस के शिकारी कुत्ते गली कूचों में मेरी बू सूंघते फिर रहे थे। वो कहीं ना कहीं, किसी गली में, किसी कोचे में, किसी बाजार में मुझे जरूर दबोच लेते। मुझे फिर अज़ियतों से गुजरना पड़ता। उनके पास बेज़ाहिर मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे आज़ाद फिजा में सांस लेने की इजाज़त कभी ना देते। इनका ने भी कहा था कि मैं बाहर कदम निकलने से गरेज करूं। मैं सीना ताने कदम बढ़ाता अपार्टमेंट के खारजी दरवाजे पर पहुंचा तो मजबूत और मुतकफ़िल दरवाजे ने मज़ाहमत की कोशिश की। मैंने सैयद की लाठी को दरवाजे पर टिका कर आहिस्ता से दबाव डाला तो दरवाजा अपनी जगह से हिल गया। कफल एक खटके की आवाज से खुल गया। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर कदम निकालने की कोशिश की। हैंड्स अप, किसी ने पुष्ट से ललकारा। मैंने पलट कर देखा। मुरली ड्रेसिंग गाउन में मलबूस रिवाल्वर ताने खड़ा था। शायद दरवाजे की चरचराहट और कफल के खटके की आवाज ने उसे बेदार कर दिया था। मुझे पहचान कर उसने रिवाल्वर नीचा कर लिया। तेजी से मेरे करीब आकर हैरत भरे लहजे में बोला, महाराज तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? मुरली, मैंने ठोस लहजे में कहा, मैंने तुमसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि मुझे जेल पहुंचा दो। तुम नहीं समझ सकोगे, लेकिन मैं जानता हूं कि अब तुम्हारा अपार्टमेंट भी मेरे लिए महफूज नहीं रहा। घियों के साथ घिन भी पिस जाए तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे बताओ महाराज, तुमको किस बात का खतरा है? वक्त ज़ाया मत करो, मेरी बात मान लो, इसी में सब की भलाई है। वो तो ठीक है, लेकिन सरोजनी, मैं उसे बाद में समझा लूंगा। जल्दी करो, मेरे पास वक्त कम है। 1 मिनट ठहरो महराज, मैं लिबास तब्दील कर लूं। मुरली ने दरख्वास्त की, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैं जानता था कि वो लिबास बाद में तब्दील करेगा, पहले सरोजनी को बेदार करके मेरे जाने की इत्तला देगा। सरोजनी के अलावा इनका को भी मेरे जाने की भनक पड़ जाती तो बात बिगड़ जाती। वो मेरे सर पर आकर अपने पंजों के नश्तर लगाती, मैं फिर से बेबस हो जाता। लिबास की फिक्र मत करो, मैंने कहा, तुम इसी लिबास में बाहर का राउंड लेने के लिए निकल सकते हो। इत्तेफाक से तुमने मुझे मुश्तबा हालत में देखकर पीछा किया। मैंने फरार होने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। समझ रहे हो मेरी बात? ये कहानी ज्यादा मुअस्सर साबित होगी, जल्दी करो। मुरली हचकचा रहा था, फिर उसकी नजरें दरवाजे की बिली हुई चोलों पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम सामने ना आ जाते तो मैं पूरा दरवाजा उखाड़ कर एक तरफ रख देता, मैंने झल्लाकर कहा। मेरी बात मान लो, वरना वक्त गुजरने के बाद एक भागे हुए मुजरिम को अपार्टमेंट में पनाह देने के जुर्म में तुम्हारी वर्दी भी उतर जाएगी। मुरली ने बल आखिर मेरी बात मान ली। मैं उसे ख्वाबगाह में जाने का मौका नहीं दिया। वो भी दरवाजे का अंजाम देखकर खौफजदा हो गया। इसी लिबास में मेरे साथ नीचे आओ। गैराज से गाड़ी निकाली, मुझे लेकर थाने की सिमत रवाना हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी तक उलझन और परेशानी के तासरात नजर आ रहे थे। उसे मुझसे ज्यादा सरोजनी का खौफ था।
ایک بات کا دھیان رکھنا، میں نے اسے یاد دلایا، میری لاٹھی مجھ سے چھینی نہ جائے، تم کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہو، میرا خیال ہے کہ کوئی ماتحت تمہارا حکم ماننے سے انکار نہیں کرے گا۔ حالات بدل چکے ہیں مہاراج، مرلی نے کسمسا کر جواب دیا، ماتحت نہ ہوتے تو دم ہلاتے رہتے، اکیلے میں افسروں کی ماں بہن ایک کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، انہیں کسی طرح سمجھا دینا، میں نے دوبارہ زور دے کر کہا۔ لاٹھی مجھ سے لے لی گئی تو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ اس لاٹھی میں ایسی کیا بات ہے؟ اس نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ واپسی میں ایک بار پھر اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے کو غور سے دیکھنا، میں نے سرسراتے لہجے میں جواب دیا، تمہیں خود ہی اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ رات سنسان اور ویران تھی، سڑکوں پر برائے نام گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ پولیس کی ایک سائرن کا کار دور سے شور مچاتی ہماری جانب لپکی، لیکن قریب آ کر انہوں نے مرلی کی گاڑی کی شناخت کی تو خاموشی سے آگے نکل گئے۔ دیکھ رہے ہو مرلی، میں سپار لہجے میں بولا، ایک ہفتہ گزر گیا لیکن ابھی میری تلاش جاری ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا اندازہ درست ہو، لیکن رات کے وقت جرائم پیشہ افراد کی وجہ سے پولیس زیادہ چوکس رہتی ہے۔ آج کل دہشت گردی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ روی شنکر سے بگاڑ مت کرنا، لیکن اسے اپنے من کے کسی بھید سے بھی آگاہ مت کرنا۔ میں اس کی بات نظر انداز کر کے کہا تو وہ چونکا۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، وہ اوپر سے جتنا شانت نظر آتا ہے اتنا ہی اندر سے کھوٹا بھی ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ اس کے سادہ لباس والے روز بروز اپنا گھیرا تنگ کر رہے تھے، کسی نہ کسی بہانے اس کے آدمی تمہارے گھر میں آ جاتے، میں تمہارے اپارٹمنٹ میں گرفتار ہوتا تو تم بھی لپیٹ میں آ جاتے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تھانہ قریب آنے لگا تو مرلی نے میری ہدایت پر میرے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے، ایسا کرتے ہوئے اس کی حالت قابل دید تھی، میں اس کی دلی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ میری کوئی چنتا مت کرو بالک، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، میں 2 ہفتے سے زیادہ پولیس کا مہمان نہیں رہوں گا، ابھی ستارے گردش میں ہیں، لیکن سمے گزرنے دو۔ میری اسبات میں گردن ہلاتا رہا۔ تھانے کے دروازے پر کھڑے سپاہی نے جھپٹ کر پھاٹک کھول دیا۔ مرلی ڈریسنگ گاؤن میں نیچے اترا تو کئی سپاہی موقع کی نزاکت بھانپ کر اندر کی طرف بھاگے۔ تھانے کا انچارج انسپکٹر بلیئر وردی ٹھیک کرتا ہوا باہر آ گیا، اسے شاید سوتے سے بیدار کر دیا گیا، نیند کا خمار ابھی تک اس کی نظروں سے جھانک رہا تھا۔ مرلی کے قریب آ کر اس نے بڑا زوردار سلوٹ مارا، پھر حیرت سے بولا، سر آپ اس سمے اس لباس میں؟ میں ابھی تک گاڑی میں بیٹھا، سید مجذوب کی لاٹھی میری گود میں پڑی تھی۔ مرلی بلیئر سے کچھ کہا اور وہ اچھل پڑا، اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، پل بھر میں مسلح سپاہیوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ مرلی بلیئر کو دکھانے کی خاطر سینہ تان کر آگے بڑھا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے مجھے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ اس کی کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت وہ بڑے مشکل مراحل طے کر رہا ہے۔ میں آہستہ سے نیچے اترا اور دانستہ طور پر لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا۔ سید کی لاٹھی گود سے پھسل کر زمین پر جا گری۔ خبردار، بلیئر نے اپنا سرور ریوالور مجھ پر تان لیا، اگر چالاکی دکھانے کی حماقت کی تو پورا شریر چھلنی کر دوں گا۔ جب میں نے اسے للکارا تو یہ بھاگا تھا، لیکن پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے لنگڑا رہا تھا، اس لیے مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ مرلی نے میرے لڑکھڑانے کا مقصد سمجھ کر کہا، لاٹھی شاید اس نے یو ڈونٹ وری سر، بلیئر درمیان میں بول پڑا، میں اس کو اسی لاٹھی کا ایسا جلا دوں گا کہ سارا کھایا پیا اگل دے گا۔ جواب میں مرلی نے مسلح سپاہیوں کو میری طرف سے ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا، پھر بلیئر کا ساتھ لے کر تھوڑے فاصلے پر چلا گیا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ بلیئر ایک سخت گیر طبیعت کا قبیض پولیس افیسر ہے۔ مرلی شاید اسے میرے سلسلے میں سمجھانے کی خاطر ایک طرف لے گیا۔ میں پولیس کے درمیان کھڑا خاموش رہا، مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مرلی اور بلیئر دونوں بات کرتے ہوئے میرے قریب آ کر، بلیئر مجھے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and